السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ بہت اچھے ہوں گے۔ کل کی 3 ویڈیو میں سوال نمبر 1 سے لے کر کے سوال نمبر 90 تک ڈسکس ہو چکا ہے۔ آج کے ویڈیو یعنی پارٹ 4 میں 91 سے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 91 کو دیکھتے ہیں۔ قصیدہ کا نقاش اول کن کو کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 91 میں کیا ہے؟ قصیدے کا نقاش اول کن کو کہا گیا ہے؟ تو قصیدے کا نقاش اول جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کو کہا گیا ہے۔ آپشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مرزا محمد رفیع سودا ہی کی جو پیدائش ہے وہ 1712 میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1712، اور ان کی وفات جو ہے 1781 میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ نیکسٹ سوال ہے 92۔ ہوا جب کفر ثابت و تمغائے مسلمانی، کس نے لکھا اور کن کی شان میں لکھا؟ کس نے لکھا آپ کو جواب دینا ہے، اور کن کی شان میں لکھا؟ یہاں پہ دیکھیے، ابراہیم ذوق در شان بہادر شاہ ظفر، نہیں، یہ رانگ آنسر ہے۔ انہوں نے ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے شان میں تو لکھا ہے، لیکن یہ قصیدہ نہیں۔ اوپر کے سوالات میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے شان میں کون سا قصیدہ لکھا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا در شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا ہے۔ تو آپ کا آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ ہوا جب کفر ثابت و تمغائے مسلمانی، مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا، اور کن کی شان میں لکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا۔ میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، اور یاد رکھیے کہ اگر جگہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کی جائے پیدائش کہاں ہے، جگہ کہاں ہے، دہلی میں ہوئی ہے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ لکھنؤ میں ہے۔ اور مرزا محمد رفیع سودا کا جو ہے انتقال ہونے کی جو اہم وجہ ہے وہ عام کھانے کی وجہ سے ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن، سوال نمبر 93۔ پروفیسر مسعود حسن خان کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ کون سا ہے؟ تو پروفیسر مسعود حسن خان کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ جو ہے وہ اندر سبھا ہے۔ تو آپشن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 94 میں دیکھتے ہیں، قطب مشتری کہاں کی تبعات مثنوی ہے؟ قطب مشتری جو ہے وہ کہاں کی تبعات مثنوی ہے؟ تو قطب مشتری پہلے جان لیجئے کہ قطب مشتری کی جو رائٹر ہیں وہ ہیں ملا اسد اللہ وجہی، ملا اسد اللہ وجہی، اور کن کی فرمائش سے لکھا تھا؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر انہوں نے قطب مشتری کو لکھا ہے۔ اور قطب مشتری نام اس لیے دیا کہ قلی قطب شاہ کا نام اور مشتری ان کے معشوقہ کا نام قطب مشتری تھا، اسی لیے اس مثنوی کا نام رکھا انہوں نے قطب مشتری، یعنی مشتری کے قطب۔ تو یہ قلی قطب شاہ کے، یاد رکھیے گا، ملا اسد اللہ وجہی جو ہیں یہی قلی قطب شاہ کے درباری شاعر بھی تھے، اور انہی کی فرمائش پر، یعنی انہی کی فرمائش پر، قلی قطب شاہ کی فرمائش پر انہوں نے قطب مشتری کو لکھا۔ اور قطب مشتری جو ہے یہ گولکنڈہ کی تبعات مثنوی ہے، جس کی طباعت جو ہے وہ 1609 عیسوی میں ہوئی، 1609 میں اس کو لکھا گیا تھا۔ اور اس مثنوی میں جو ہے وہ قلی قطب شاہ اور مشتری کے جو ہے عشق کی داستان ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں 95 کوشچن، قطب مشتری کے مصنف کون ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قطب مشتری کے جو مصنف ہیں وہ ملا اسد اللہ وجہی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ملا اسد اللہ وجہی جو ہیں، ملا اسد اللہ ان کا نام تھا، وجہی ان کا تخلص تھا۔ اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے 3 تخلص کا استعمال کیا ہے؟ تو وہ ملا اسد اللہ ہی ہیں۔ ملا اسد اللہ تخلص استعمال کرتے تھے وجہی، اور ایک تھا وجیہی اور ایک تھا وجیہ، یہ 3 تخلص کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔
सब रस में इन्होंने वजही का इस्तेमाल किया है और क़ुत्ब मुश्तरी में इन्होंने वजही का इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा। जमील जालबी के मुताबिक क़ुत्ब मुश्तरी में हर जगह तखल्लुस जो है वो वजही ही है। मैंने आपको बताया ना कि वजही जमील जालबी के मुताबिक है। क्या है, किनके मुताबिक है? जमील जालबी के मुताबिक क़ुत्ब मुश्तरी में ये हर तखल्लुस जो इस्तेमाल किए वो हर जगह वो किए हैं वजही। और मुल्ला असदुल्लाह वजही जो हैं कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे, लेकिन इनकी पैदाइश जो हुई है वह इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में हुई है। और मुल्ला असदुल्लाह वजही ने अपने एक फ़ारसी शेर में अपनी जाए पैदाइश हिंदुस्तान और आबाई वतन खुरासान को बताया है, याद रखिएगा। और कुली कुतुब शाह ने इनको मलिकुश्शोरा का भी लक़ब दिया था। मलिकुश्शोरा का लक़ब इसके अलावा किनको मिला है, इससे पहले वाले सवालात में आपको बताया गया है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि मलिकुश्शोरा का लक़ब मुल्ला असदुल्लाह वजही के अलावा कौन थे और वो किनके दरबारी शायर थे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो बताएंगे वो यकीनन काबिल तहसीन होंगे। इसके बाद 96 फूल बन के मुसन्निफ़ कौन है? फूल बन के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं फूल बन के जो मुसन्निफ़ हैं वो है इब्ने निशाती। फूल बन के कौन है मुसन्निफ़? इब्ने निशाती। इब्ने निशाती का जो नाम है वो है शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन, याद रखिएगा, शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन। शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन और इनके वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन था। इब्ने निशाती की पैदाइश 1045 हिजरी में हुई, याद रखिएगा। इब्ने निशाती गोलकुंडा के बाशिंदा थे, यानी गोलकुंडा के बाशिंदा और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। किसके शायर थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। और मुल्ला असदुल्लाह वजही जो हैं वो कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे और इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में वो पैदाइश हुई, लेकिन इब्ने निशाती जो थे ये आपके हो जाएंगे कुली कुतुब शाह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। और इन्हीं की लिखी हुई एक मसनवी है जिसका नाम है फूल बन। और इब्ने निशाती का नाम शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन, वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन था। इब्ने निशाती अपने दौर का दूसरा बड़ा शायर है, याद रखिएगा। आगे चलिए 97 में देखते हैं, दुरुस्त जुमले की पहचान करें। आपको इस नीचे दिए गए कुछ जुमले हैं, इनकी पहचान आपको करनी है। नंबर 1 है आपका ऑप्शन ए में शहज़ादा अतारुद सफ़र पर सौदागर बनकर रवाना होते हैं। अब ये जानिए कि ये किस मसनवी से अख़ज़ किया गया है। ये जो है ये शहज़ादा अतारुद जो है, यानी मरीख़ अतारुद, ये सारे जो नाम हैं, जो गैलेक्सी मतलब जो प्लैनेट्स के जो नाम होते हैं, इन तमाम नामों का जो फहरिस्त है वो क़ुत्ब मुश्तरी में शामिल है। यानी उसमें क़ुत्ब मुश्तरी में इन तमाम नामों को शामिल करके ही कैरेक्टर यानी किरदार को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, शहज़ादा अतारुद सफ़र पर सौदागर बनकर रवाना हुए थे। क्या बनकर रवाना हुए थे? सौदागर बनकर। इसके बाद ऑप्शन बी में है मसनवी कुतुब मुश्तरी में इब्राहिम कुतुब शाह हीरो के वालिद हैं। अब हीरो कौन है? तो हीरो यहाँ पे देखिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी के हीरो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। कौन है? कुली कुतुब शाह हैं और इन्हीं के वालिद हैं इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह जो इनके वालिद हैं, यानी मसनवी में भी कुतुब शाह के वालिद इब्राहिम कुतुब शाह हैं और हीरो जो है वो कुली कुतुब शाह हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि हस्ब बाला में से सब सही। शहज़ादा अतारुद सौदागर बनकर गए थे, इब्राहिम कुतुब शाह हीरो के वालिद थे और मोहम्मद कुली कुतुब शाह हीरो थे। सवाल नंबर 98 क़ुत्ब मुश्तरी को सबसे पहले किसने शाये किया? तो क़ुत्ब मुश्तरी को जो सबसे पहले शाये किया वो मौलवी अब्दुल हक ने शाये किया, 2 मखतूतों की मदद से। किसकी मदद से? 2 मखतूतों की मदद से मुरतब करके इसको शाये 1938
1938 या 1939 में शाये किया गया। याद रखिएगा इसका डेट ऑफ पब्लिशन 1938 या 1939। और किसके ज़रिए शाये किया गया? तो अंजुमने तरक्की उर्दू, अंजुमने तरक्की उर्दू, याद रखिए अंजुमने तरक्की उर्दू के माध्यम से इसको शाये किया गया। किसने शाये किया? मौलवी अब्दुल हक ने। कब शाये किया? 1938 में। चलिए 99। क़ुत्ब मुश्तरी में कितनी गज़लें शामिल हैं? क़ुत्ब मुश्तरी जो है उसमें 7 गज़लें शामिल हैं। याद रखिए क़ुत्ब मुश्तरी में कितनी गज़लें शामिल हैं? 7 गज़लें शामिल हैं और 9 रुबाइयाँ हैं। कितनी रुबाइयाँ हैं? 9 रुबाइयाँ हैं। चलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क़ुत्ब मुश्तरी में 7 गज़लें और 9 रुबाइयाँ शामिल हैं। नंबर 100 यानी लास्ट, इसके बाद भी एक सवाल वो फ्री का है, आप मेरी तरफ से आपके लिए सवाल नंबर, सारे सवालात फ्री के हैं, मजाक कर रहा हूँ आपको, देखिए गौर से। बस एक सवाल ज़्यादा था तो मुझे लगा कि उसको लिख देना चाहिए तो मैंने लिख दिया उसको। चलिए सवाल नंबर 100। अब जब 100 तक आप आ गए हैं तो एक बार आप लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक से आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो वीडियो बनाया है इसका बहुत कुछ संवर जाएगा। एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसको आपको जिस तरीके से मारना है उसको मार दीजिए। आप उसके ऊपर चढ़ जाइए, उसके ऊपर मुक्का मारिए, जैसे मारना हो मारिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए सवाल नंबर 100 देखते हैं। मुल्ला असदुल्ला की पैदाइश किसके ओहद में हुई? तो अभी मैंने आपको बताया कि मुल्ला असदुल्ला की पैदाइश जो है वो इब्राहिम कुतुब शाह के ओहद में हुई है और कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। सवाल नंबर 101। किरदारों की पहचान करें। क्या करें? किरदारों की पहचान करें। जो कैरेक्टर्स हैं यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। तो कदम राव हीरा नगर का राजा था। कदम राव जो था वो हीरा नगर का राजा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पदम राव, कदम राव का वज़ीर था। कदम राव का वज़ीर कौन था? पदम राव था। और इसके अलावा सी में है अक्षरनाथ। अक्षरनाथ एक जोगी है। क्या है? अक्षरनाथ एक जोगी था। तो ये तीनों ऑप्शन आपका राइट है। अब इसका 101 वाले का जवाब हस्बे बाला में से सब सही तो है, लेकिन आपको ये देना है कि कदम राव और पदम राव जो है ये किस मसनवी से अख़ज़ किया हुआ है, किस मसनवी के किरदारों में हैं। ये आपको 2 सवालात जो मैंने आपको बताए जिसको कमेंट सेक्शन में देना है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने यहाँ तक देखा है और आपको मालूम